going to complete the course in this lesson. So first I will complete the numerical problem which is left to be completed in last lesson, and then I will complete the topic carbon register and its color coding, and then its related numerical based on the NCERT and some few numericals based on all the lessons. So let's start the numerical problem. Now see, in this numerical problem what is given: find the time of relaxation between collision and free path of electron in copper at room temperature. Means we have to find first the value of tau, means the relaxation time, and then we have to find mean free path of electron. So for this calculation, the given values in this question is: resistivity of copper is 1.7 into 10 to the power minus 8 ohm meter. Density of copper is given here 8.5 into 10 to the power 28 per meter cube. Then charge on electron, it is already known value, and then mass of electron, again it is a known value, and then the drift velocity is given here, means drift velocity of free electron is given here, that is 1.6 into 10 to the power minus 4 meter per second. So with this given information we have to find that the value of tau and mean free path. So let's start to solve the question. Now these are the given information from the question. Now see, as we know that the value of resistivity, or we can say that the value of R which we have find in last lesson, that is M into E divided by N into E square into tau. So these are the equations which we already dealt in the last lesson. So from this equation we will find the value of tau. हमने यहाँ से tau की वैल्यू सेपरेट किया तो क्या हो गया, m into e means mass of electron, here that is m into e means mass of electron, m e mass of electron divided by e square into n into resistivity rho. So the value of mass of electron me is 9.1 into 10 to the power minus 31. Then put the value of me in this here and divide by e square. e की जो वैल्यू है वो क्या है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, और उसका स्क्वायर करना है हमें यहाँ पे. देन मल्टीप्लाई करना है हमें n से, n की वैल्यू दे रखी है 8.5 इंटू 10 की पावर 28, एंड देन रजिस्टिविटी की वैल्यू दे रखी है दैट इज़ 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 8. अच्छा, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ऐसी कैलकुलेशंस आपके अगर क्वेश्चंस में आ रहा है तो करना क्या है, आपको सबसे पहले 10 के पावर को सॉल्व कर लें, बेस सेम रहेगा, और एक्सपोनेंट को एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके एक तरफ सॉल्व कर लें. उसके बाद की जो रेस्ट वैल्यू जो होगी उनको आप डिवाइड कर लें तो आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ टाउ इज 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 14 सेकेंड. तो कुछ नहीं था, इक्वेशंस डायरेक्ट क्वेश्चन था, हमने इस इक्वेशंस के हेल्प से टाउ की वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया. नाउ नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो देखो मीन फ्री पाथ क्या होगा, वी डी इंटू टाउ. सो वी डी का वैल्यू देखो क्वेश्चन में दे रखा है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड. तो पुट कर दो वैल्यू वी डी की जगह पे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 4 और मल्टीप्लाई कर दो टाउ की वैल्यू से. अभी हमने टाउ की वैल्यू फाइंड करी है यहाँ पे, दैट इज 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 14. सो अगेन इसको सॉल्व करें, 10 की पावर माइनस 4 और 10 की पावर माइनस 14, तो माइनस 14 और माइनस 4 दैट इज माइनस 18, एंड इनको मल्टीप्लाई करो 1.6 इंटू 2.5 तो आपको ये आंसर मिल जाएगा. So we had found it here the value of tau and mean free path of electron. Now the next topic is carbon register. होता क्या है कार्बन रजिस्टर? कार्बन रजिस्टर इज ए कंपोनेंट, एक कंपोनेंट है. करता क्या है, हमें एक रेजिस्टेंस की स्पेसिफाइड वैल्यू प्रोवाइड कराता है. मीन्स कुछ कोड होगा इन फॉर्म ऑफ बैंड्स ऑफ कलर, तो जिससे हमें एक रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी इन टर्म्स ऑफ ओम. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ कलर कोडिंग. मीन्स अगर कलर दिया होगा तो हम उसे डिकोड कैसे करेंगे. तो उसको समझने के पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे कुछ कलर कोड्स फॉर रेजिस्टेंस वैल्यू मीन्स कुछ टेबल ले रखा है हमने, एक तो ये टेबल और एक ये टेबल. तो देखो सबसे पहले जो ये टेबल दिख रहा है आपको, इट इज़ फॉर द कलर कोड फॉर रेजिस्टेंस वैल्यू. मीन्स अगर कलर दी होगी तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू क्या होगी. ये देखो ये जो दिख रहा है आपको ये वैल्यू के लिए है,
और ये कलर मीन्स अगर ब्लैक कलर है तो उसकी वैल्यू होगी 0, अगर ब्राउन कलर है तो उसकी वैल्यू 1, अगर रेड कलर है तो 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वॉयलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8 और वाइट के लिए 9। तो ये कलर कोड हमें याद करना पड़ेगा। देन एक टॉलरेंस की वैल्यू दे रखी है हमें, गोल्ड के लिए ±5%, सिल्वर के लिए ±10% एंड नो कलर, अगर कलर नहीं है तो हमें ±20% होगी। अब देखो हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कार्बन रजिस्टर लिया है जिसमें हमने 4 बैंड्स ऑफ कलर शो करा है, बैंड ए, बैंड बी, बैंड सी एंड बैंड डी। तो जो बैंड ए है वो सबसे पहले लाई करेगा, बैंड उसके बाद नेक्स्ट बैंड बी, देन बैंड सी और बैंड डी। तो एक कार्बन रजिस्टर में 4 ही बैंड होंगे इन टर्म्स ऑफ ए बी सी और डी। अच्छा देखो, अगर मान लो कि बैंड ए जो है वो ब्राउन कलर्ड है तो हम लिखेंगे क्या, ब्राउन कलर के कोड क्या है 1 है तो लिखेंगे 1। देन अगर मान लीजिए कि जो बैंड बी है वो वॉयलेट कलर का है तो हम लिखेंगे 7। ठीक है, जैसे जैसे कलर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी वैल्यू को लिख दे रहे हैं। बट अगर सी की जगह पे अगर मान लीजिए कि जो बैंड सी है वो ग्रे कलर का है तो हम ग्रे की जगह पे 8 नहीं लिखेंगे, हम 0 देंगे 8 टाइम्स। मीन्स सी वाले बैंड में, स्पेशली सी के लिए ध्यान रखना है, अगर सी बैंड में जो भी कलर होगा और उसके जो कोड होंगे, जैसे मान लीजिए कि रेड कलर है सी बैंड तो हम 2 नहीं लिखेंगे, 2 बार 0 लिखेंगे। और डी जो बैंड है इट इज़ फॉर टॉलरेंस, तो जो भी कलर होगी, अगर गोल्ड होगी तो ±5%, अगर सिल्वर होगा तो 10% प्लस माइनस लगा के, और कई बार डी बैंड नहीं होता है तो हम 20% अपनी तरफ से ऐड कर देंगे। चलिए हम एक कोड देखते हैं, इसे याद कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमने लिखा है, एक आपको लाइन याद करनी पड़ेगी, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो हमने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है बी फॉर ब्लैक, देन ब्राउन, देन आर मीन्स रेड, ऑरेंज, देन येलो, देन ग्रीन, देन ब्लू, देन वॉयलेट, देन ग्रे, देन वाइट, और उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज़ भी हमने यहाँ पर शो कर रखा है। तो ये आप याद कर लो, इजी रहेगा कलर कोडिंग याद करने के लिए। चलो इस पर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो कि एक हमने कार्बन रजिस्टर लिया है और जो कलर यहाँ पे है, पहला वाला कलर देखो दिख रहा है आपको, फर्स्ट बैंड में ग्रीन कलर है, सेकंड बैंड में ब्लू कलर है, थर्ड बैंड में येलो कलर है और फोर्थ बैंड में गोल्ड कलर है। तो देखो ग्रीन के लिए कलर क्या होता है, ग्रीन के लिए 5 नंबर वैल्यू 5, ब्लू के लिए 6 वैल्यू एंड येलो के लिए 40। देखो यहाँ पे येलो के लिए क्या है, यहाँ पे देखो 40, तो हमने 40 लिख दिया है, तो क्या आ गया 5 6 और 10 की पावर 4 ओम, तो 5 6 0 0 0 0 ओम। अच्छा फोर्थ बैंड में कलर क्या है, गोल्ड है, तो गोल्ड के लिए क्या होता है 5%, तो ±5%। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कलर कॉम्बिनेशन निकालते हैं और वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। ना चलते हैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल मैंने लिया है बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो क्वेश्चन में क्या है कि Q की वैल्यू दे रखी है दैट वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो Q क्या है 80 - 1/2 BT² + 1/6 CT क्यूब, और A B C क्या है यहाँ पर, दीज आर द कॉन्स्टेंट। तो हमें फाइंड क्या करना है, इनिशियल करंट फाइंड करना है, टाइम आफ्टर विच करंट रीचेज द मैक्सिमम वैल्यू, मीन्स हमें वो टाइम फाइंड करनी है जिसपे वो मैक्सिमम हो जाएगी, और कितनी होगी मैक्सिमम करंट वो वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो आई का इक्वेशन, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि टाइम के अकॉर्डिंग करंट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो यहाँ पे जो करंट आएगी दैट विल बी इंस्टेंटेनियस करंट। तो क्या होती है वैल्यू, I = dq/dt, मीन्स हमें Q को डिराइव करनी है, मीन्स डेरिवेटिव करनी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड। तो हमने d/dt और Q की वैल्यू हमने पुट कर दी, दैट इज 80 - 1/2 BT² + 1/6 CT क्यूब। अब देखो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें सपोज d/dx ऑफ x का पावर n करना है तो ये जो पावर है वो पहले आ जाएगा n, देन x के पावर n-1। तो देखो यहाँ पर a को कांस्टेंट है तो a को पहले निकाल लो, देन d/dt ऑफ t क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा क्योंकि पावर 1 है, तो 1 × t के पावर 1 - 1 0, तो t के पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो 1, तो a × 1 a हो गया, देन माइनस BT², तो 1/2 b तो कांस्टेंट हो गए और t² का 2t, सो 2 से 2 कैंसिल, देन इट इज BT प्लस 1/6 CT क्यूब, तो 1/6 c तो कांस्टेंट हो गई, देन t क्यूब क्या हो जाएगा 3t², तो इससे 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, सो इट विल बी हाफ CT²। तो ये हो गया I की वैल्यू। अब देखो हमें t निकालनी है, मीन्स हमें इनिशियल करंट निकालनी है। जब भी कोई इनिशियल वैल्यू निकालनी होगी तो हम t क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो इस इक्वेशन में t की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो
ये तो कंप्लीट जीरो हो जाएगी, ये भी कंप्लीट जीरो हो जाएगी. सो आई इज इक्वल्स टू व्हाट, आई इज इक्वल्स टू वैल्यू जो हमारी आ गई दैट विल बी ए. इट इज नॉट जीरो, इट विल बी आई इज इक्वल्स टू ए वैल्यू. ओके. नाउ फॉर मैक्सिमम वैल्यू हमें क्या करना है, अगर जब भी अपने को मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी होती है सो पुट डिफ्रेंशिएट करना उस वैल्यू को और उसको इक्वेट करनी है जीरो के टर्म से. याद रखना, जब भी कोई मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी होगी तो उसको डिफ्रेंशिएट करोगे और जीरो की इक्वेट पुट कर दोगे. सो यू विल गेट द कंडीशंस फॉर द मैक्सिमम वैल्यू. तो हमने इसको टी के टर्म में हमने आई को डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टी. सो वी विल गेट दैट माइनस बी प्लस हाफ सी टी सी इंटू टू टी. ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, देन माइनस बी टी का बी आ जाएगा एंड हाफ सी टी स्क्वायर, तो हाफ सी का हाफ सी रहेगा और टी स्क्वायर का टू टी. तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द डिफरेंशिएशन. देन यहाँ से आप क्या कीजिए, इसको जीरो पुट कर दीजिए वैल्यू को. सो विल गेट टी इज इक्वल्स टू बी बाय सी. दिस विल बी द टाइम पीरियड और आफ्टर विच करंट रीचेस टू द मैक्सिमम वैल्यू. अब ये टी की वैल्यू हम इस आई में पुट कर देंगे. सो विल गेट द वैल्यू ऑफ आई मैक्स. तो देखो हमने क्या किया, टी की जगह पे हमने ये जो इक्वेशंस है हमने पहले जो फाइंड किया था वहाँ पे हमने टी की वैल्यू क्यों टी की जगह पे बी बाई सी हमने पुट कर दिया. सो आफ्टर फाइंडिंग ऑल इक्वेशंस विल गेट द वैल्यू ऑफ आई दैट इज ए माइनस बी स्क्वायर बाय टू सी. कुछ नहीं किया है, जहाँ जहाँ पर टी है वहाँ पर बी बाई सी हमने पुट कर दिया है और सिंपली सॉल्व करा है हमने. सो दिस इज अबाउट द आई मैक्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ लेंथ ऑफ वायर हैज रेजिस्टेंस 4.5 ओम. फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल ऑफ 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज ट्वाइस द क्रॉस सेक्शनल एरिया. क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि R1 की वैल्यू 4.5 है, L1 की वैल्यू L ले रखा है हमने और A1 की वैल्यू A कर दिया. अच्छा, सेकंड केस में क्या बोल रहा है, R2 हमें फाइंड करना है किस कंडीशन में, L2 जो है वो थ्राइस ऑफ प्रीवियस वैल्यू, मीन्स कि जो पहले अगर L था तो अब 3L है, और A2 जो है वो ट्वाइस ऑफ प्रीवियस वैल्यू, तो अगर पहले A था तो अब 2A है. अच्छा, R इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए होता है, तो R1 क्या हो जाएगा, रो इंटू L1 अपॉन A1. R2 क्या हो जाएगा, रो इंटू L2 अपॉन A2. चलिए डिवाइड कर दीजिए R2 को R1 से, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ L2 अपॉन L1 इंटू A1 अपॉन A2. अच्छा, रजिस्टिविटी कैंसिल हो जाएगा. अच्छा, हमने इसको रो 1 रो 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि सेम कंडक्टर के लिए, तो सेम कंडक्टर के लिए कांस्टेंट हमेशा चेंज नहीं होंगे, दैट विल बी सेम. सो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ L2, L1, A1 एंड A2 हियर. यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x दैट इज द वैल्यू ऑफ R2. नाउ कम फॉर द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. हमने एक एनसीईआरटी से न्यूमेरिकल लिया है. क्या बोला है, द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन EMF 12 वोल्ट. इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 ओम, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी. तो E की वैल्यू दे रखी है EMF और इसकी R की वैल्यू, R इज व्हाट, इंटरनल रेजिस्टेंस. देखो कोई भी डिवाइस होगा तो उसके खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है. जब वो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो होगी तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I मैक्स. तो हमने ओम्स लॉ का फॉर्मूला यूज किया है, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R. सो I मैक्स इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस स्मॉल r, वेयर R इज जीरो फॉर I मैक्स. तो सिंपली पुट कर दो I मैक्स, तो 12 अपॉन 0.4 दैट विल बी 30 एम्पियर. Now come for the next question. A negligibly small current is passed through a wire of length 15 meter and uniform cross-sectional area 6 into 10 की power minus 7 meter square and its resistance is measured to be 5 ohm. What is the resistivity of the material at temperature of experiment? तब resistivity निकालनी है. L की वैल्यू दे रखी है, A की वैल्यू दे रखी है, R की वैल्यू दे रखी है. So what is the formula for resistivity? R into A upon L. So just put the value of R, A and L. You will get the value of resistivity, that is 2 into 10 की power minus 7 ohm meter. So student, these are the completion of the course. So hope you will understand the course, and in next course I will complete how we can combine the resistance, what is the expression for R series, R parallel and all. So thank you and have a nice day.